یہ چھُ book word, یہ چھُ a word, یہ چھُ is word, یہ چھُ companion word. چھا یہ چھُ group of words چھا. It does not make a sense. Much more sense. Arranged in a proper manner. ساتھ میں اضافہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, یہ اچھی تعریف نہیں ہے اس کی گروپ آف ورڈس. یہ چھُ تَتہِ میڈمو نا سکوٗلَس منٛز یاد کرناونہٕ خٲطرٕ اِمتحانَس منٛز پاس کرنہٕ خٲطرٕ وَننومُت, مگر اَصلی چھُنہٕ یہِ صحیح تعریف اَمِچ کینٛہہ. صحیح تعریف چھِ a group of words arranged in a proper manner which give a sense. سینس ہے نا وہ اگر یہ گروپ آف ورڈز ہے پھر جب تک یہ سینس نہیں بنائیں گے تب تک یہ سینٹینس بن رہے ہیں. مثلا ہم نے کہا الباب. الباب, اب آپ کے ذہن میں پڑا الباب, لیکن الباب ایک اکیلا لفظ ہے. اس کے بارے میں الباب کے بارے میں نے کہنے والے کو کیا کہنا وہ کہا نہیں. جب وہ اس کے بارے میں کہے گا تو جملہ بنے گا. اب میں جب بولوں گا الباب مغلقن, بند ہے, بند ہے نا, تو میں نے اس کے بارے میں کہا مغلقن یعنی بند ہے. الباب مغلقن, دروازہ بند ہے. پورا سینٹینس آپ کے سمجھ میں آیا. اصل میں منہ سے ایک لفظ ہم نکالتے ہیں, جب اس کے بارے میں ہم جو کچھ کہنا چاہیں وہ کہیں گے تو جملہ بنتا ہے. ہم منہ سے ایک لفظ نکالتے ہیں, کسی چیز کے بارے میں بولنا شروع کر دیتے ہیں, اس کو منہ سے بولا, پھر اس کے بارے میں کچھ بولا تو جملہ ہو گیا. ہم نے منہ سے کوئی لفظ نکالا, پھر اس لفظ کے بارے میں کچھ کہا تو جملہ بنے گا پورا. میں نے کہا تھا الباب, صبح شام تک روز بنا الباب. الباب کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا, پھر الباب کے بارے میں مجھے کیا کہنا ہے, جب وہ کہہ دیا تو جملہ ہو گیا. سمجھ میں آیا؟ تو یہ جو الباب ہمارا ہے, اس سے ہم نے جملے کا آغاز کیے, اس کو ہم کہتے ہیں المبتدا, جس سے ہم نے ابتدا کی. اور ہم نے الباب کے بارے میں کیا نیوز دی, نیوز دس نا, مطلب اس کے بارے میں, باب کے بارے میں نیوز کیا ہے, مغلق ہونے کی. تو اس کو ہم سیدھا کہیں گے ان نیوز, خبر. سمپل, ویری سمپل. سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ آپ منہ سے کوئی لفظ بولتے ہیں, پھر اس کے بارے میں کچھ کہتے ہیں, یہ جملہ بنتا ہے. ٹیکنیکل تعریف کیا ہے گرامر کی کتابوں میں وہ ابھی نہیں بتا رہا ہوں آپ کو, صرف آپ کو انڈرسٹینڈ کرا رہا ہوں. جملہ کیا ہوتا ہے کہ ہم منہ سے کوئی بات نکالتے ہیں, پھر اس بات کے بارے میں یا اس لفظ کے بارے میں کچھ کہتے ہیں. زیادہ ٹیکنیکلی اگر ہم کہیں گے تو ہم منہ سے کوئی اسم نکالتے ہیں, منہ سے کوئی اسم نکالتے ہیں, پھر اس اسم کے بارے میں کچھ کہتے ہیں تو جملہ بنتا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ کہیں گے, یہاں کہیں گے المعلم. ہم نے کہا المعلم ایک اکیلا لفظ ہے, ہم نے تو ایک لفظ سے ابتدا کر دی. المبتدا تو ہم نے مبتدا جس سے ہم نے ابتدا کی, اس کو مبتدا کہیں گے. عربی میں مبتدا کہتے ہیں جس سے ہم نے جملے کی یا بولنے کی ابتدا کر لی. اب ہمیں کچھ کہنا ہے, کس کے بارے میں کہنا ہے, کس کے بارے میں, مبتدا کے بارے میں کچھ کہنا ہے. جس سے میں نے ابتدا کی بات کی اس کے بارے میں اب مجھے کچھ کہنا ہے, تو جب میں وہ بات کہوں تو وہ اس کی نیوز ہوگی یا اس کی خبر ہوگی. سمپل, ویری سمپل. اب یہ دروازہ کیا ہے, بند ہے نا. الباب مغلق, الباب کیا ہے, مبتدا, اور مغلق اس کی خبر ہے, اس کی نیوز ہے. اور مبتدا اور خبر دونوں مل کر کے بن گئے الجملہ. اب وہ بعد میں بتاتا ہوں آپ کو, فی الحال جملہ تو سمجھ لو. اور یہاں المعلم واقف ہم نے کہا کھڑا ہے, معلم اس کے بارے میں نیوز ہے واقف. ٹھیک ہے. تو کیا کہا ہم نے, یہ اس کے بارے میں, معلم کے بارے میں کیا آئی, الخبر آئی. مبتدا اور خبر دونوں مل کر کے الجملہ ہو گئے. اور چھوڑ دیجیے ابھی جملہ اسمیہ خبریہ وہ سارا چھوڑ دیں, بعد میں کریں گے. پہلے آج جملہ کیا ہوتا ہے, آج ہم جملہ ہی پڑھتے ہیں. تو کیا ہوتا ہے جملہ, ہم منہ سے کوئی لفظ نکالتے ہیں, پھر اس لفظ کے بارے میں کچھ کہتے ہیں, جملہ ہو گیا. فنش, سمپل.
टेक्निकली क्या लिखा है ग्रामर की किताबों में तारीफ वो बाद में, मगर गोड गश्त अमुक ये गछुन क्या कहते हैं, नहीं उसको क्या कहते हैं कि आपको पहले जुमले के बारे में नहीं कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। टेक्निकल वर्ड हमने देखा है बहुत सारे तलबा को पूरा जुमले की तारीफ याद होती है, लिखते भी हैं, मतिशन पाई ऐसा जुमले क्या बनाएगा, क्योंकि उनको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ होता। तो जुमले का कॉन्सेप्ट क्या है, मुंह से आपने कोई बात निकाली और फिर उसके बारे में कुछ कहा, किसके बारे में, उसी लफ्ज़ के बारे में, जुमले नहीं उसी लफ्ज़ के बारे में जो आपने मुंह से निकाला। ज़्यादातर ये इसम निकालते हैं हम हमसे मुंह से निकालते हैं इसम, फिर उसके बारे में कुछ कहते हैं। अब ये कहिए कि हमने मुंह से कुछ निकाला फिर उसके बारे में कुछ कहा, तो जो मुंह से निकाला उसको मुब्तदा कहेंगे, जो उसके बारे में कहा वो उसकी खबर होगी। मुब्तदा और खबर मिलकर के क्या बनते हैं, जुमला बनते हैं। क्लियर है? ये आज हम जुमला का ही पढ़ते हैं। तो मिसाल के तौर पे देख लीजिए, ग्रुप ऑफ वर्ड सुखना थोमुत वही करिए, वो कभी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ स्टूडेंट्स का, तिम बुढ़ा तामत आसान, तिम अमेरिका फिर तिम परे आसान 10 वरी दिते डॉक्टर सब युवा तौर 10 वरियन डॉक्टरी करे तम पत ये तो सेंटेंस क्या हो सो दैट इट ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अब देखो हमने दरवाजे के बारे में क्या कहा, ये बंद है, तो हमने क्या कहा था, अलबाब के बारे में हम बात कर रहे हैं। अलबाब के बारे में हम बात कर रहे हैं कि अलबाब क्या है, क्या खबर दी, अलबाब मुगलकुन, मुगलकुन माने बंद है। आप लोगों को समझ में आया अच्छी तरह से? हमने अलबाब कहा, फिर उसके बारे में न्यूज़ दी क्या, मुगलकुन, अलबाब मुगलकुन। अब हम दूसरी खबर दे देंगे इसके बारे में, आप बोलिए अलबाब अब मुगलक नहीं है, अब हम कहेंगे अलबाब मफ्तूहन, अलबाब मफ्तूहन, अरबी में कहते हैं खुला, मफ्तूह खुला। क्लियर? समझ में आया? अब हम कहेंगे बड़ा है ना दरवाजा, दरवाजा कैसा है, बड़ा है छोटा है, बड़ा है, तो हम इसके बारे में कहेंगे अलबाब कबीर, अलबाब कबीर, दरवाजा बड़ा है। क्लियर हो गया? अच्छा, नया है या पुराना है, व्हाट कैन यू फर्स्ट, अलबाब, तब हम कहेंगे जदीदुन इसके बारे में, जदीद अरबी में कहा वही जो आपने उर्दू में कहा, अलबाब जदीदुन, अलबाब जदीद। अच्छा, खूबसूरत है या बदसूरत है, तो बोलिए जमील है, तो क्या कहेंगे, अलबाब जमील। अच्छा, दूर छा कि ना कमजोर, दूर दिलिश वना अरबी पे मतीन, तेज से मतीन, तो हम क्या कहेंगे तब, अलबाब मतीन, दरवाजा बड़ा मजबूत है। ठीक है, अलबाब मतीन, दरवाजा मजबूत है। तो आप किसके बारे में बात कर रहे हैं, आपने दरवाजे के बारे में क्या क्या न्यूज़ दी, मुगलक होने, मफ्तूह होने की, कबीर होने की, जदीद होने की, जमील होने की, मतीन होने की। तो आपने इस जुमले में आपका मुब्तदा क्या है, मुब्तदा ये है, और ये क्या है, अल खबर, अल खबर, मुब्तदा और खबर मिल करके क्या हुए, अल जुमला। अभी वो इसमिया फेलिया के चक्कर में मत पड़िए, पहले सेंटेंस क्लियर करते हैं, पतमान हो और तुम बहुत कैसा समझते हो, सेंटेंस ही सूर पर समझे कि नहीं। और यहाँ आप बता सकते हैं मुब्तदा क्या है, अलबाब, यहाँ मफ्तून क्या है, किसकी, मेरी, बाब की खबर है। यहाँ क्या है, मुब्तदा बाब ही है और कबीर खबर है, और यहाँ जदीद उसकी खबर आ गई, और यहाँ अलबाब जमील,
यहाँ जमीरुन खबर है, ठीक है, और यहाँ अलबाब मतीन, यहाँ बाब की खबर मतीन है, मजबूत है। समझ में आया? तो दरवाजे के बारे में कभी दरवाजा ऊंचा होता है, थोदाश तच मुर्तफिउन, अलबाब मुर्तफिउन, दरवाजा थोद, अलबाब मुर्तफिउन। मुझ तो थावन अल्फाज याद है, ये अल्फाज याद आसन जनाब तो एक दीवार बनाए शेर दी गई सीमट थे स्याक थे दुशल गए इस पाने स्याक सीमट गैसा आसन के मटेरियल गैसा आसन दोस्त बने तेरे बने नहीं सुनो इन्हें मटेरियल आज दोस्त बने तब मतलब वो तो वहाँ अल्फाज जरूरत। अब मेरा ग्रामर आगे निकल रहा है, आपके अल्फाज पीछे रह रहे हैं। तो मैं हुक्म मैंने दरवाजा पास्ता है, आप नहीं बोल सकते ना क्या इसका बनवा पास्ता आशे सोम आसान दरवाज तथ क्या बना मुन खफिजु अलबाब मुन खफिजु अलबाब मुन खफिजुन पास्ता है, ऊंचा होगा तो अपने ऊंचा कथिन में शुरन अगर दरवाजा कुशाद तो वनो अलबाबो क्या वनो अलबाबो फसीह फसीह वासियुन तिस वना मगर बेहतर लफ्ज अलबाबो फसीह फसीहुन आख स्वाद सी स्वाद से फसीह गो असल पे कलाम गरित चरित कलाम करने वाले वना फसीह नफर। समझ में आया? इसने एकदम अंडरस्टैंड गज कत यह सह नफर बड़ फसी यानी अम सज कत एकदम फिक्र तरह अमिस यह सामिया सद जहन मुताबिक कत कर तथा वन फसी फसाहत तमी मज ये क्या सीन से स्वाद से अलबाब फसीह। अच्छा फसीह गो तुम कुन सात दरवाज तंग लफज गना तुम नश तथा वन ज़य्यकुन क्या वन द्राव मोन ग्रामर ब्रो तो तुहद अल्फाज रूद पत द्राव तम मतलब मे रुकन यीज करो तुम अल्फाज इन अद पकड़ो ब्रो है कि नहीं? आपको अब मटेरियल आना चाहिए, मटेरियल होगा तो बनाओगे, दीवार मकान बनाओगे, मटेरियल नहीं है क्या बनाओगे? इसका मतलब है आपको अल्फाज का खजाना अब आना होगा, सुस्ता था याद। अच्छा अगर ये दरवाजा कुशादा नहीं है, तंग है, तो क्या बोलेंगे? अलबाबु ज़य्यकुन, ज़य्यकुन का मतलब होता है टाइट, ठीक है? कल जुमले बने तो बाबस में दा यूनिवर्सिटी में लड़के पारान बेश आसान कॉलेज में तमित अरबी पे पे तिम दपान तत वन सा यूनिवर्सिटी पे अख जुमल अलजामिया कबीर अम अपोर तरीन जुमल तन गलती वन कबीर वन कबीर। मुझे याद है जब मैं एमए में था तो वाइवा बोसी में एक लड़के को कहा जामिया पे यूनिवर्सिटी पे वन से जुमला जी अलजामिया क्या तमिस गुम तमिस क्या गो त्रस तमिस कॉन्सेप्ट क्लियर कॉन्सेप्ट क्लियर। तो अगर वो कहता अगर जन तुम पता कह ना दरवाज यह क्या मुगल बंद ना तो हूँ वन अलबाब बंदन स्ट्रक्चर है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ये क्या वनो खुलुन, ये क्या वनो अलबाब बोडुन, ये क्या वनो नयुन वनो ना, यानी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। लफ्ज आपके पास नहीं है तो ये क्यों मैंने अदला बदल लफ्ज था, समझे कि नहीं? कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो फटाफट जबान, और फिर वोकैबुलरी आपके लिए ज़रूरी है, ठीक है? अभी ग्रामर टच नहीं करूँगा, ग्रामर हम कल टच करेंगे, लेकिन आपको जुमला सेंस आ गई कि हम मुंह से एक लफ्ज़ बोलते हैं फिर उसके बारे में कुछ कहें। ये तो मुंह से हमने बाप का लफ्ज़ निकाला, अलबाब का हाथ कह दिया, क्लियर है? अलबाब कह दिया, फिर उसके बारे में क्या क्या कहना चाहते हैं हम वो सारा कह दिया हमने। लकुट मकुट मजमून बने होते 10 जुमलन दरवाजे पर बने हो ना। अगर आपको कहा जाए दरवाजे पर 10 जुमले लिखो, लिखोगे 5 कम से कम तो लिखोगे, कि ना?
समझ में है कि नहीं? वो तो पता लिख तो बुडुन या लिख तो पाश्तुन या लिख तो थुदुन, लेकिन स्ट्रक्चर आपको सेंटेंस का समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि मैं कितने सेंटेंस बनाऊंगा। क्या है, अब मुंह से एक लफ्ज बोलते हैं फिर उसके बारे में कुछ कहते हैं। यहाँ हमने मुंह से दरवाजा निकाला, अलबाब निकाला, फिर अलबाब के बारे में जो मर्जी है वो कह दो, जो है वो कह दो। क्या है? नहीं, अभी क्या है? बंद है, छोड़ तो बोलिए अलबाब मुगलकुन। अब बोलिए अलबाब मफ्तूह। ठीक है, अलबाब मफ्तूह, अलबाब वासिउन फसीहुन, अलबाब ज़य्यकुन, अलबाब मुर्तफ़िउन, अलबाब मुनख़फ़िज़, अलबाब फिनिश। मसला तूत मसला जिसने समझी। तो जुमला क्या होता है? टेक्निकली नहीं, टेक्निकली जो उसकी इस्तिलाहात हैं वो मैं नहीं बोल। जुमले क्या शासन, हम मुंह से एक लफ्ज निकालते हैं फिर उसके बारे में कुछ कहते हैं, जुमला हो गया, फिनिश मामला। यूज योर दंदरछन। अब टेक्निकली जब मैं बताऊंगा आपको जुमले की क्या तारीफ है अरबी में, वो आपको ऐसे याद रहेगी और कॉन्सेप्ट भी काम करेगा। आज मैं